Good afternoon, students. Today we will continue our third lesson, electoral politics. Yesterday we have seen why elections with the example of assembly election in Haryana. And today we will learn about why do we need elections. We need elections because in an election the voters make many choices. They can choose who will make laws for them. They can choose who will form the government and take major decisions, and they can choose the party whose politics will guide the government and lawmaking. And this is the these things make voters this thing makes voters easy to choice to their they elect their representatives. And the questions emerged, but can we call the place a democracy? How do we find out if the people like their representatives or not? How do we ensure that these representatives rules as per the wishes of the people? How to make sure that those who the people don't like do not remain their representatives? This requires a mechanism by which people can choose their representatives at regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. Therefore, elections are considered essential in our times for any representative democracy. बच्चों, कल हमने देखा था कि चुनाव क्यों, और ये हमने कैसे देखा? तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव का उदाहरण लेके हमने देखा कि चुनाव क्यों. आज हम देखते हैं चुनावों की ज़रूरत क्यों है. चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं. वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार और उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं. और इन सारे चीज़ों के लिए हमारे मन में प्रश्न उठते हैं. वो ऐसे कि क्या हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करे? हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद न हो वो अपने पद पर न बने रहे? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिसमें लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके, और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दे. इस व्यवस्था का नाम चुनाव है. ठीक है, आ गया बेटा समझ में? और उसके उत्तर तो हमने दिए हैं कि चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं. अब हम देखते हैं what is our system of election, and in another word we can say election procedure in India, or what is our system of election. So there is the Indian procedure of election. So the first step of our election is electoral constituencies. Means the country is divided into different areas for purposes of election. These areas are called electoral constituencies. The voters who have in an area elect one representative
for Lok Sabha elections, the country is divided into 543 constituencies. The representatives elected from each constituency is called a member of parliament or an MP. So the first step of our election is electoral constituencies. चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है? तो सबसे पहले और सबसे पहली स्टेप है चुनाव क्षेत्र। अब ये चुनाव क्षेत्र क्या होता है? तो चुनाव के क्षेत्रों में बांटा जाता है या बांट लिया गया है। इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य। इसलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफ़ी हद तक एक समान हो और इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है और इन निर्वाचित प्रतिनिधियों को हम क्या कहते हैं? विधायक। अब दूसरे स्टेप में या इसी में हम समझते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र और इंग्लिश में हम उसे कहते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। Reserved constituencies means the makers of our constitution thought of a special system of reserved constituencies for the weaker sections. Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste SC and scheduled tribes SC. In a SC reserved constituency, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election. Similarly, only those belonging to the scheduled tribes can contest an election from a constituency reserved for ST. Currently, in Lok Sabha, 84 seats are reserved for scheduled caste and 47 for the scheduled tribes. आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पे चुने जाने का अधिकार देता है और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसी कारण चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित है तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति के ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी लोकसभा की 84 सीट्स अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीट्स अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ये हमारे पहली जो स्टेप है ना निर्वाचन क्षेत्र उसी का हिस्सा है। अब हम पूरी चुनाव प्रक्रिया समझते हैं कि किस तरह से हमारी चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाती है। द सेकेंड स्टेप इज़ वोटर्स लिस्ट। दिस इज़ very important. This is an important step for it is linked to the first condition of democratic election.
Everyone should get an equal opportunity to choose representatives. Earlier, we read about the principle of universal adult franchise. Means everyone should have one vote and each vote should have equal value. No one should be denied the right to vote without a good reason. Different citizens differ from one another in many ways. Some are rich, some are poor, some are highly educated, some are not so educated or not educated at all. Some are kind, others are not so kind, but all of them are human beings with their own needs and views. That is why all of them deserve to have an equal say in decisions that affect them. So in our country, all the citizens aged 18 years and above can vote in an election, and every citizen has the right to vote. Some criminals and persons with unsound mind can be denied the right to vote, but only in rare situations. It is the responsibility of the government to get names of all the eligible voters put on the voters list. As new persons attain voting age, names are added to the voters list. Names of those who move out of a place or those who are dead are deleted. A complete revision of the list takes place every 5 years. This is done to ensure that it remains up to date. दूसरा स्टेप है हमारे चुनाव का, जिसे हम कहते हैं मतदाता सूची। और ये मतदाता सूची चुनाव का एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से है। पहले हमने देखा ना कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी क्या कि 18 साल के ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, और उसका वोट जो है वो समान होगा। मतलब क्या कि हर किसी को मत देने का अधिकार है और हर एक का मत समान मूल्य का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण न हो, किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित है, कोई बहुत दयालु है तो कोई नहीं है, पर हर कोई इंसान तो है और अपनी ज़रूरतों और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान करता है। इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो, उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम स्थितियों में होता है। और सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। और इसीलिए हर चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं। इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग इस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम सूची से काट दिए जाते हैं और हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है।
And now the third step of election procedure is nomination of candidates. Anyone who can be a voter can also become a candidate in elections. The only difference is that in order to a candidate, the minimum age is 25 years, while it is only 18 years for being a voter. There are some other restrictions on criminals, etc., but these apply in very extreme cases. Political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. Party's nomination is often called party ticket. Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. Every candidate has to make a legal declaration giving full details of first, serious criminal cases pending against the candidate, details of the assets and liabilities of the candidate and his or her family, and educational qualifications of the candidate. This nomination has to be made public. This provides an opportunity to the voters to make their decision on the basis of information provided by the candidates. तीसरा इलेक्शन की प्रोसेस जो है उसको कहा जाता है उम्मीदवारों का नामांकन. जो कोई व्यक्ति मतदाता है वो उम्मीदवार भी हो सकता है, बराबर है ना. 18 साल के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, वैसे ही वो चुनाव लड़ने का भी अधिकार है. पर चुनाव लड़ने के लिए आयु के लिए क्राइटेरिया है. 18 वर्ष की उम्र वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है. उम्मीदवार बनने में भी राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है. पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं. और चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है और कुछ रकम ज़मानत के रूप में जमा करानी पड़ती है. और अब जो भी उम्मीदवार नामांकन भरता है उसके लिए प्रत्येक उम्मीदवार को निम्नलिखित विवरण देने पड़ते हैं. जैसे पहला, उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, और उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता. इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए. इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों के द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है. और अब उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता आपके किताब में दी है, वो आप पढ़ लेना बेटा. और अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो मुझसे पूछ लेना. And in English, educational qualifications for candidates. This is given in your book. You can read it, and if you have any difficulty, then you ask me. And another step of election procedure is election campaign. The main purpose of election is to give people a chance to choose the representatives, the government and the policies they prefer. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is better representative, which party will make a better government, or what is good policy. This is what happens during election campaigns. In our country, such campaigns take place for a 2-week period between announcement of the final list of candidates and the date of
polling. During this period, the candidates contact their voters, political leaders address election meetings, and political parties mobilize their supporters. This is also the period when newspapers and television news are full of election-related stories and debates. But election campaign is not limited to these 2 weeks only. Political parties start preparing for elections months before they actually take place. In election campaign, political parties try to focus public attention on some big issue. They want to attract the public to that issue and get them to vote for their party on that basis. We will see, let us look at some of the successful slogans given by different political parties in various elections. The Congress party led by Indira Gandhi gave their slogan of Garibi Hatao in Lok Sabha 71. Second, Save Democracy was the slogan given by Janata Party under the leadership of Jai Prakash Narayan in Lok Sabha election held in 1977. Third, Land to the Tiller. The left front used the slogan in the West Bengal Assembly elections held in 1977. And Protect the self-respect of the Telugus was the slogan used by N.T. Ramarao, the leader of the Telugu Desam party in Andhra Pradesh Assembly elections in 1983. In a democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaigns the way they want to. But it is sometimes necessary to regulate campaigns to ensure that every political party and candidate gets a fair and equal chance to compete. Now, according to our election law, no party or candidate can bribe or threaten voters, appeal to them in the name of caste or religion, use government resources for election campaign, and spend more than rupees 25 lakh in a constituency for a Lok Sabha election or rupees 10 lakh in a constituency in an assembly election. Then, according to this, no party or candidate can code of conduct. Use any place of worship for election propaganda. Use government vehicles, aircrafts and officials for elections. Once elections are announced, ministers shall not lay foundation stones of any projects, take any big policy decisions or make any promises or providing public फैसिलिटीज़. अब चुनाव का अगला है चुनाव अभियान. अब इसमें क्या होता है? चुनाव अभियान, चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना. इसलिए कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छा सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत ज़रूरी है और चुनाव अभियान के दौरान यही होता है. अब क्या होता है कि हमारे देश में उम्मीदवार की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है. इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं. और इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी खबरें और बहसें भी होती है. राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से
इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। अब चुनाव अभियान के दौरान क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित कराना चाहती है और वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती है और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती है। अब कुछ विभिन्न चुनावों के दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों के तरफ हम चलते हैं। 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। और 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ। और वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में नारा दिया, जमीन जोतने वाले को जमीन दी जाए। और 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ादी देना अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले इसके लिए कई बार कुछ दखल देना ज़रूरी होता है। अब उम्मीदवार और पार्टी, क्या उम्मीदवार या पार्टी सब काम कुछ काम नहीं कर सकती? कौन से, वो हम देखते हैं। मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना, उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना और लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना। और अगर वे इसमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बाद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। और इसीलिए देखो, हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। उसके अनुसार क्या है, देखो किन किन चीज़ों की मनाही है। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का उपयोग, सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा बचा है बेटा, वो हम पढ़ेंगे कल।